بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچی کہانیاں سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام نادیہ ہے۔ ہم پنجاب کے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ میں بہت بور ہوتی تھی، خدا سے دعا کرتی تھی کہ کوئی مہمان آ جائے تاکہ میں مہمانداری میں مصروف ہو جاؤں اور بوریت ختم ہو جائے۔ میرے چچا جان نزدیکی شہر میں رہا کرتے تھے اور چھٹیوں میں یہ ساری فیملی لازمی گاؤں آتی تھی۔ جب یہ آتے تو ہم خوشیاں مناتے، انجوائے کرتے۔ چچا جان اور ابو کی آپس میں بہت محبت تھی۔ والد صاحب ان کے آنے سے سرشار ہو جاتے اور خاطرداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے۔ اس بار گرمیوں کی چھٹیوں میں کچھ دن باقی تھے، لہٰذا ان کا آنا ابھی ممکن نہ تھا۔ تاہم انسان دعائیں تو اپنی آرزوؤں کے مطابق مانگتا ہے اور دل سے نکلی ہوئی دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں۔ میرے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو گئی۔ میں صبح سویرے بیدار ہوتی تھی، لہٰذا میں نے نماز فجر پڑھی، پھر ناشتہ بنانے لگی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ابو نماز مسجد میں پڑھنے گئے ہوئے تھے، امی سو رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چچا جان کی فیملی دروازے پر موجود تھی۔ مارے خوشی کے میری باتیں کھل گئیں، سب سے ملی۔ میرے اس چچا کی 3 بیٹیاں تھیں، تینوں کو خوش آمدید کہا۔ چچا زاد بھائی ہارون بھی آئے تھے، کافی خوش مزاج اور ہنسمکھ تھے۔ بچپن سے سن رکھا تھا کہ ان سے دادی اور دادا مجھے منسوب کر کے گئے ہیں اور میری شادی انہی سے ہوگی، اسی وجہ سے زیادہ بے تکلف نہ تھی۔ جب آتے سلام کر کے ایک طرف ہو جاتی، ہارون بات کرنے کی کوشش کرتے تو ہوں ہاں کرتی اور ادھر ادھر ہو جاتی، کیونکہ گاؤں میں معزز گھرانوں کا یہی طریقہ تھا کہ جس لڑکے سے شادی کا امکان ہو اس کے ساتھ لڑکیاں بے تکلفی سے کلام نہیں کرتی۔ لہٰذا میں نے ہارون کو سلام کیا اور ایک طرف ہو گئی۔ تاہم میں چونکی ضرور کہ آج ہارون کے ساتھ ایک خوبرو لڑکا بھی تھا جو ہارون سے 1-2 برس کم عمر لگ رہا تھا۔ سوچنے لگی یہ کون ہو سکتا ہے، اسے سلام کروں یا نہ کروں۔ ابھی سوچ رہی تھی کہ وہ آگے بڑھا اور مجھ کو سلام کیا، پھر ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے صرف سلام کا جواب دیا مگر ہاتھ نہیں ملایا بلکہ پیچھے ہو گئی۔ تب ہارون نے کہا، نادیہ یہ میرے ماموں کا بیٹا نادر ہے اور میرا سب سے بہترین دوست بھی ہے۔ اس کی چھٹیاں تھی، لہٰذا میں نے اصرار کر کے اس کو ساتھ لایا ہوں، اس کو گاؤں پسند ہے۔ امی ان کی آواز سن کر اٹھ چکی تھی، وہ کمرے سے باہر آئیں، سب سے ملیں اور پھر کمرے میں لے گئیں۔ اتنے میں ابو بھی آ گئے اور میں سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ میری مدد کے لیے میری چھوٹی بہن بھی آ گئی۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ بنایا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میری کزنز میرے کمرے میں آ گئی، ہم گپ شپ کرنے لگی، جبکہ نادر ہارون میرے بھائی بلال کے ساتھ کھیتوں کی طرف نکل گئے۔ نادر کو گاؤں بے حد پسند آیا۔ جب ہم لڑکیوں نے شام کو وہاں جانے کا پروگرام بنا لیا، ان دنوں گاؤں میں لڑکیوں کو کھیتوں میں جانے کی پابندی نہ تھی اور پردے کے بغیر لڑکیاں کھیتوں میں جا سکتی تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے نہر بھی تھی، کیونکہ یہ ہماری زمین تھی، لہٰذا اس طرف بغیر اطلاع یا اجازت گاؤں کے لوگ نہیں آتے اور ہمارے کھیتوں سے بھی نہیں گزرتے تھے، بلکہ دوسرے راستے سے ان کی آمد و رفت ہوتی تھی، لہٰذا ہم لڑکیاں بے دھڑک اپنے کھیتوں میں گھوم پھر سکتی تھی۔ ہماری گپ شپ 2-3 گھنٹے سے جاری تھی، تبھی امی جان نے آ کر ہدایت دی کہ ابھی دوپہر کا کھانا بناؤ، کھانے کی تیاری کرو۔ میں اور میری چھوٹی بہن کچن میں چلی گئی، جبکہ ہماری چچا زاد بہنیں آرام کرنے کی خاطر ہمارے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں سالن کے لیے پیاز کاٹنے لگی اور میری چھوٹی بہن مسالہ بنانے لگی۔ اتنے میں میرے بھائی بلال کے ساتھ نادر اور ہارون بھی آ گئے۔ وہ خوب نہر میں نہا کر آئے تھے۔ آتے ہی کچن کی طرف آئے، آتے ساتھ ہی بھیا نے کہا کہ ہمارے لیے جلدی سے گرم گرم چائے بنا لو۔ میں نے جلدی جلدی چائے بنا کر ٹرے میں رکھی اور اپنی چھوٹی بہن بینت سے کہا، جاؤ یہ ٹرے ان کو دے آؤ، مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی، میں نہیں جاتی، وہ لڑکا نیا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ ناچارہ مجھے ہی جانا پڑا۔ جب میں نے ٹرے میز پر رکھی تو بھیا کہنے لگے، نادیہ چائے بنا کر دیتی جاؤ۔ میں نے کپ میں تھرمس سے چائے نکالی اور سب سے پہلے اپنے بھائی کو دی، پھر 2 کپ بھرے اور مہمانوں کو دینے لگی تو اتفاقاً کپ چھلک گیا اور تھوڑی سی چائے نادر کے ہاتھ پر گر گئی۔ گرم چائے ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ جھلس گیا، مگر وہ خاموش رہا، سب سے کام لیا اور اف بھی نہ کی۔ تاہم میں بہت زیادہ خجل اور شرمندہ ہوئی۔ ہارون نے بھی ضبط سے کام لیا اور مہمانوں کے سامنے چپ رہا، جبکہ بھائی بولا، نادیہ دھیان سے کام کیا کرو۔ تبھی نادر بولا، کوئی بات نہیں،
मैं किचन में वापस आई और बेहद शर्मिंदा थी। ख्वामख्वाह इस बेचारे का हाथ जल गया, वो क्या सोचेगा। खैर फिर हमने खाना तैयार किया और दोपहर को सबको खाना खिलाया। मौसम अच्छा था और अब गर्मियों में भी तेज़ी नहीं आई थी, लिहाजा दोपहर को सोने को जी नहीं चाह रहा था। काम निपटाकर हम दोनों बहनें भी अपनी तीनों कज़न से गपशप करने कमरे में चली गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि भाई ने मुझको आवाज़ दी थी, नादिया इधर आओ। मैं गई तो कहने लगे, किसी साफ सी कटोरी में एक टिकिया काफूर मक्खन में घोल कर ला दो। मैं समझ गई कि वो किस लिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि नादिर के हाथ पर आंवला पड़ गया था। मैंने जल्दी जल्दी काफूर मक्खन में मिलाकर आमेज़ा बना लिया और कटोरी भाई को थमा दी। बिलाल ने अभी कटोरी पकड़ी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मेरा भाई बाहर चला गया, कोई दोस्त आया था और फिर वो अपने दोस्त के हमराह ही कहीं चला गया और मेरा चचा साथ हारून भी घर में मौजूद न था। भाई शायद भूल गया था कि कटोरी मेरे हाथ में थी। लम्हा भर को मैंने सोचा, फिर मैंने दवा नादिर को देने का इरादा किया और इसके कमरे में चली गई जहां वो बैठा हुआ था। मैंने गैर लड़कों से कभी कलाम नहीं किया था, मगर यहाँ सरासर मैं कसूरवार थी। मुझे नादिर की तकलीफ़ का भी ख्याल था। इसी सबब मैंने कटोरी में से दवा रूई पर लगाकर कहा, नादिर इधर लाइए हाथ। इसने खामोशी से हाथ आगे बढ़ा दिया। वाकई खासा बड़ा छाला बन गया था। इसने खामोशी से हाथ आगे बढ़ा दिया। वाकई खासा बड़ा छाला बन गया था। मैंने दवा बहुत आहिस्तगी से जली हुई जिल्द पर लगा दी और कहा, आपने शायद हाथ फ़ौरन पानी में डाल दिया था, इसी वजह से आंवला पड़ गया है। अगर आप इस पर तेल या घी लगा देते तो आंवला न बनता। इसने मुस्कुराकर कहा, तो ये आप पहले मुझे बता देती। इस बात पर मैं और ज़्यादा शर्मिंदा हुई और बोली, खैर ये दवा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, 2-3 बार लगाने से ज़ख़म ठीक हो जाएगा और जले का निशान भी न पड़ेगा। नादिर बोला, ज़ख़म तो ठीक हो जाएगा, मगर लगता है जले का निशान नहीं जाएगा बल्कि हमेशा रहेगा। ये एक ज़ोमानी जुमला था। बात बदलने को मैं कहने लगी, आपने कब तक यहाँ रहना है? तब ही वो कहने लगा, जानती हो कि ऐसा कहना मेहमान नवाजी के अदाब के ख़िलाफ़ है। जानती हूँ, फिर तुमने ऐसा सवाल क्यों किया? ताकि आपका इरादा जान लूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इस वक्त तक ना जाएं जब तक ये आंवला सही ना हो जाए। क्या अपने शहर जाकर ये हाथ का आंवला सही ना होगा? नादिर ने शरारती लहजे में पूछा, वहाँ आप ये दवा कैसे लगाएंगे? यहाँ तो मैं रोज़ बनाकर दे दूँगी और आप बाकायदगी से 3-4 दिन लगाएंगे, इसी तरह जल्दी से ज़ख़म सही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा, जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं होगा मैं नहीं जाऊँगा। वैसे भी मैं जिनके साथ आया हूँ वापस भी इनके साथ ही जाऊँगा, लिहाजा आप अपनी चची से पूछ लें कि वो कब जाएंगी। ये बात सुनकर मैं कदरे पुरसकून हो गई, क्योंकि चची ने बताया था कि वो 10 रोज़ से पहले ना जाएंगी। शाम को हम लड़कियां खेतों में गईं और थोड़ी देर बाद हारून, बिलाल और नादिर भी आ गए। वो आम के दरख्तों के नीचे खड़े थे और बातें कर रहे थे। फिर हम नदी की तरफ आ गए। वो नदी में पाँव डालकर बैठ गईं तो मैंने इनको मना किया कि इधर मत बैठो, ऐसा ना हो कि नदी में जा गिरो। ये छोटी सी नहर है मगर काफ़ी गहरी है और हम में से कोई भी तैरना नहीं जानता। तभी मेरी कज़न्स हंसने लगी, बोली, गिर जाएंगी तो क्या हुआ, हमको बिलाल, नादिर और हारून बचा लेंगे। मैं भी इनके साथ हंस थी। थोड़ी देर में वहाँ रही, लेकिन आज मेरा दिल नहीं बहल रहा था और मेरा ध्यान बार बार नादिर की जानिब जा रहा था। शायद इनका भी ध्यान मेरी ही तरफ था। किसी बहाने में घर गई तो थोड़ी देर बाद वो भी आ गया। अम्मी सो रही थी और चची जान नमाज पढ़ रही थी। आपको बताती चलूँ कि इन दिनों मेरी अम्मी की तबीयत ठीक ना थी, इसलिए वो दवा खाकर सो जाती थी। मेरे घर पहुंचने के 5 मिनट बाद वो आ गया। शायद इसने मुझको घर की तरफ जाते देख लिया था। वो सीधा मेरी जानिब आया और कहने लगा, नादिया ये क्या बात है, आज तुमने मुझे दवा नहीं लगाई? क्या तुम नहीं चाहती हो कि जो ज़ख़म तुमने लगाया है वो ठीक हो जाए? इसके फ़िक्रे पर मेरा दिल धक से हुआ और मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी। मैंने 2 टोक लहजे में कहा, नादिर क्या तुम जानते हो कि मेरी बात बचपन से ही मेरे चचा ज़ाद हारून से तय हो गई थी? जानता हूँ, लेकिन शायद ये तुम नहीं जानती कि हारून तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वो अपने पड़ोसन की लड़की जोया पर दिलो जान से फ़िदा है, इससे ब्याह करना चाहता है और इसी बात पर इसकी अपने अम्मी अब्बू के साथ कई बार लड़ाई भी हो चुकी है। जब मैंने ये बात सुनी तो दिल में धमाका सा हुआ, कोई शय गिर कर टूट गई। शायद कि ये इतबार का बुत था। लम्हे भर को तो मैं सकते में रही, फिर खुद को संभाला, ताहम इससे पहले कि मैं कुछ कहती नादिर ने सवाल कर दिया, क्यों, क्या अपने बचपन के मंगेतर से बहुत शदीद मोहब्बत है तुमको?
मेरी बात सुनकर अगर तुम्हें तकलीफ हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं है नादिर, बल्कि अब से तुम मेरे मोहसिन हो, क्योंकि तुमने मुझे एक बहुत बड़ी गलत फहमी से निकाल दिया है। हकीकत हकीकत होती है नादिया, अगर तुम्हें दुख हुआ है तो सह जाओ, क्योंकि आगे और ज़्यादा तुम दुखी होती। मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मैंने कमाल बेनियाजी से कहा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए एक झटका तो लगा था, लेकिन फिर नादिर के खूबरू चेहरे पर नज़र पड़ते ही सारा दुख हवा हो गया। मैंने जान लिया कि मुझे हारून से कोई मोहब्बत ना थी, बस लोगों का दिया हुआ एक तस्वुर था जो पायदार ना रहा। तो अब मैं हल्की फुल्की हो गई थी। अब ये रोज़ का मामूल हो गया था कि फजर के वक्त नादिर भी उठ जाता। जब अबू और चचा मस्जिद रवाना हो जाते और मैं नमाज़ पढ़ लेती, वो किचन में मेरे पास आ जाता और हाथ आगे करके कहता, दवा लगा दो। अब इसका ज़ख़म खासा ठीक हो गया था, बस सुर्खी बाकी थी। एक रोज़ वो मेरे साथ ऐसे ही बैठा था और मैं उंगली से इसके जले हुए हाथ की पुश्त पर काफूर का हमेज़ा मल रही थी कि चचा जान घर के अंदर आ गए। वो आगे थे और इनके पीछे मेरे वालिद साहब थे। चचा ने देखा और ये समझा कि शायद मैंने नादिर का हाथ थामा हुआ है या इसने मेरा हाथ पकड़ रखा है। बस फिर क्या था, वो आग बगोला हो गए और बग़ैर सोचे समझे नादिर को थप्पड़ रसीद कर दिया। जब वो इसे थप्पड़ मार चुके, फिर अब्बू घर में दाखिल हुए और इन्होंने इनको थप्पड़ मारते हुए नहीं देखा। मैं डर से किचन में जा छुपी और नादिर अपनी बेइज्जती पर पर्दा डालने की खातिर भाई के कमरे में चला गया। चचा जान के इस थप्पड़ ने मेरे दिल में नादिर की मोहब्बत जगा दी और अब मैं इसके दुख में जलने लगी, बल्कि इसके चले जाने के ख्याल से तड़पने लगी। इस वाक़े का मेरे और नादिर के सिवा सिर्फ चचा जान को पता था। इन्होंने नादिर को थप्पड़ रसीद कर दिया था, मगर मुझे कुछ नहीं कहा। शायद वो बात बढ़ाना ना चाहते थे कि मेरी बदनामी हो जाएगी। बहरहाल इनका गुस्सा गलत ना था, क्योंकि इनका ख्याल में मैं इनकी भाई की बेटी ही नहीं बल्कि इनकी होने वाली बहू भी थी। मैं और नादिर अब छुप छुप कर बातें करने लगे और मैं बहाने से नहर पर कपड़े धोने जाने लगी। हालांकि पहले अगर अम्मी मुझे कहती भी कि नहर पर कपड़े धो लाओ तो मैं अम्मी से लड़ने लगती कि नहीं, मैं नहर नहीं जाऊंगी। लेकिन अब मैं नादिर से बातें करने की खातिर खुशी खुशी नहर जाती। चचा जान की फैमिली को हमारे घर आए हुए 10 रोज़ हो चुके थे और अब वो वापस जाने की तैयारी बांध रहे थे। जिस रोज़ इनका जाना था, एक रोज़ पहले मैं और नादिर बहुत उदास थे। हम सोच रहे थे कि क्या पता हम फिर कभी मिल सकें या नहीं, क्या खबर ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। नादिर ने मुझको तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो, मैं अम्मी अब्बू को मना लूँगा और फिर वो तुम्हारा रिश्ता लेने आ जाएंगे। तब मैंने टूटे हुए दिल से कहा, नादिर मुझे बहलाओ मत, तुम क्या समझते हो कि मेरे अम्मी अब्बू ये रिश्ता मान लेंगे? हम नहर पर खड़े ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक चचा जान का मुलाजिम वहाँ आ गया। इसने हमको बातें करते देख लिया था। कहने लगा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फ़ौरन जाएं यहाँ से, वरना मैं अभी आपके चचा जान से जाकर बात करता हूँ। इस बात पर नादिर को गुस्सा आ गया। इसने मुलाजिम को गाली देकर कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम कौन होते हो हमसे बास पुरस करने वाले? इस पर मुलाजिम को भी गुस्सा आया और वो नादिर से उलझने लगा। तभी नादिर ने बरहम होकर इसको कहा, जाता है या फेंक दूँ नहर में। नादिर नहीं जानता था कि इस मुलाजिम को तैरना नहीं आता, क्योंकि वो देहात में तकरीबन हर शख्स को जानता था कि वो तैरना जानते हैं। धक्का ज़ोर से लगा तो मुलाजिम, जिसका नाम खैरू था, नहर में जा गिरा और देखते ही देखते खैरू का लहू से नहर का पानी रंगीन होने लगा। दरअसल नहर में एक बड़ा पत्थर पड़ा था और गिरते ही खैरू का सर पत्थर से जा टकराया। खैरू पानी में पुश्त के बल गिरा था, यानी चारों शाने चित गिरा था। फ़ौरन ही नादिर ने छलांग लगाना चाही, मगर मेरे दिमाग ने अजीब काम दिखाया। मैंने इसको अपनी कसम देकर कहा, नादिर प्लीज़ फ़ौरन यहाँ से भाग जाओ और इससे पहले कि कोई इधर आ जाए और तुमको देख ले, मैं भी घर जाती हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो कह दूँगी कि खैरू खुद नहर में गिर गया है, इसका पाँव फिसल गया था। मेरे कहने पर नादिर दौड़ने लगा, मगर वो घर जाने की बजाय उल्टी सिमत को दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते चचा जान से जा टकराया, जो इधर से घर की सिमत को आ रहे थे। बदहवासी की वजह से नादिर को चचा जान सामने नजर न आए, जबकि मैं घर पहुंच चुकी थी, मगर इस कदर घबराई हुई थी कि हाँप रही थी। और सामने ही अम्मी के पास चची बैठी थी। इन्होंने जो मेरी उड़ी हुई रंगत देखी तो पूछने लगी कि क्या हुआ है, किधर से आ रही हो और क्यों इस कदर घबराई हुई हो। मैंने बात बनाना चाही, मगर मेरी बौखलाहट रास खोल रही थी कि मैं कुछ छुपाने की कोशिश में झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद चचा जान आ गए और रास फाश हो गया।
क्योंकि जब इन्होंने नादिर को पकड़ा और मारा तो इसने सब कुछ साफ साफ उगल दिया। भला ऐसा मामला कहाँ छुपता है। चचा जान पर्दा रख भी लेते तो भी नादिर की घबराहट साफ चोखली खा रही थी कि खैरू का खून नाहक इसी के हाथों हुआ है और ये सब गुस्से का नतीजा था। अब्बू और चचा ने बहुत नादिर को बचाने की कोशिश की मगर वो ना बचा सके। जब नादिर ने खुद हकीकत बयान कर दी फिर तो गांव के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर इसी वाक़े की गर्दान सुनाई देने लगी। खैरू के बाप और भाई जमा होकर आ गए। वालिद साहब ने काफ़ी रुपए देने की पेशकश भी की कि यह हादसा हुआ है, आप लोग माफ़ कर दो, लेकिन वो लोग ना माने। खैरू के लवाहिकीन ने नादिर के खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया। इन्होंने इतनी रियायत ज़रूर की कि झगड़े और इश्तियाल का पर्चा कटवाया और पर्चे में मेरा जिक्र या नाम कहीं ना आने दिया, वरना अब्बू और चचा किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। इस वाक़े के बाद नादिर से मेरी शादी का अमर महाल था। इसको 3 साल की जेल हो गई। इसी दौरान मेरी शादी हारून से हो गई क्योंकि अब्बू और चचा ने इस पर सख्त दबाव डालकर अपना मौक़िफ़ मनवा लिया कि लड़की का रिश्ता इन हालात में अपने ही लेते हैं, गैर क्यों लेने लगे। जैसी भी है नादिया हमारी इज़्ज़त है। बुज़ुर्गों ने अपनी इज़्ज़त तो संभाल ली मगर मेरी ज़िंदगी और जवानी बर्बाद हो गई। हारून ने मुझसे निकाह ज़रूर किया मगर मुझे बीवी का मकाम और प्यार कभी ना दिया। इन्होंने रोज़े अव्वल से मुझे मुँह न लगाया। बस मैं शादीशुदा और सुहागन ज़रूर कहलाती हूँ मगर हारून मेरे पास नहीं होते। मेरे साथ शादी के 2 बरस बाद ही इन्होंने अपनी मर्ज़ी और पसंद से दूसरी शादी कर ली और अब वो इसी के साथ रहते हैं। मैं सिर्फ चचा चची की बहू कहलाती क्योंकि ख़ानदानी बीवी हूँ, लिहाजा सब मुझको इज़्ज़त देते मगर दिल की खुशी कोई नहीं दे सकता। 3 साल गुजरे तो नादिर जेल से रिहा हो गया। जब उसको मालूम हुआ कि मेरी शादी हो चुकी है तो वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया। एक रोज़ इसने मुझे फ़ोन किया, नादिया मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। मैं अब हारून की बीवी हूँ नादिर, मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती। लेकिन नादिर ने बहुत ज़ोर दिया और कहा अगर तुम मुझसे मिलने ना आई तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। वैसे भी अब मेरा ज़िंदा रहने का कोई इरादा नहीं क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं शामिल तो मैं अब इस ज़िंदगी का क्या करूँगा। ये बात सुनते ही मैं बेहद डर गई। मुझे नादिर से अब भी बेहद मोहब्बत थी लेकिन अब मैं हारून की बीवी थी। मैं कैसे उससे मिल सकती थी। ताहम मैंने अपनी दोस्त से मिलने का बहाना घड़ा और नादिर के बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुंच गई। नादिर मुझे देखकर बेहद खुश हुआ और कहने लगा खुदा के लिए प्लीज़ हारून से तलाक ले लो, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी हारून को तुम में दिलचस्पी नहीं, वो दूसरी शादी कर चुका है। एक बेवफा शख्स की खातिर तुम क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हो। ये सुनते ही मैंने नादिर के आगे हाथ जोड़ दिए। खुदारा एक बार मैं रुस्वा हो चुकी हूँ, मुझे फिर रुस्वा ना करो। मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, मैं जैसी भी हूँ मैं खुश हूँ। मैं नादिर को ये बात समझा रही थी कि हारून रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। वो अपने किसी दोस्त के हमरा आया था। उसने मुझे नादिर के हमरा बैठा देख लिया। फिर क्या था, मेरे पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक गई। घर पहुंचते ही हारून ने एक हंगामा खड़ा कर दिया और उसी वक्त मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। नादिर की वजह से एक बार फिर मैं रुस्वा हो गई। मैं अपने वालिदैन के पास गांव आ गई। मेरी जैसी इद्दत पूरी हुई नादिर रिश्ता लेकर आ गया और मेरा निकाह खामोशी के साथ नादिर के साथ करवा दिया गया। नादिर मुझे पाकर खुशी से निहाल था। आखिर इतने इंतज़ार के बाद खुशी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।